ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:27 ਹੋ ਰਹੇ हैं। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਔਰ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਨੀ ਜਾਨੋ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਆਪ ਦੀ ਦੋਤੀ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਟਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੈੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਉਸਦਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰੋ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਅੱਜ
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਦਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਹੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਉਸਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੀਆਂ ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ सत्संग कराने वाले हो, शुकराने कराने वाले हो, खुद ही अपने चरना च अपनी संगत ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत शुक्राना मेरे दाता, कृपा करना, शुक्राना करने की दात बख्शना मेरे प्रभु, कृपा करना प्रभु। बच्चों की रक्षा करना गुरु जी, अंग संग रहना, सदा सहाय रहना गुरु जी महाराज, कृपा करना। गुरु जी बोल रहे हैं कि तू 4 रख के चली जानी है और
मेरे कोल बैठया कर ते मेरे नाल कुछ गल्लां करया कर ते तेरा भी दिल हल्का होए। तो सही में संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। कई बार मैं ऐसे ही कर देती थी। सुबह की चाय बनाकर मैं गुरु जी के आगे रखकर अपने काम में लग जाती थी। लेकिन गुरु जी का थोड़े दिन में ही मैसेज आ गया था कि तू चाह रख के चली जानी आ, मेरे कोल बैठ के चाह पिया कर ते अपने दिल दियां गल्लां मेरे नाल करया कर ते तेरा मन हल्का होएगा। सही में गुरु जी, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। उस दिन के बाद से मैं आप ही के पास बैठ के आप ही के साथ चाय प्रसाद ग्रहण करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी तरह मुझसे जो भी कोई गलतियाँ होती है ना गुरु जी, प्लीज़ मुझे डांट दिया करो। मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी, मैं बड़ी अनजान सी बच्ची हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरु जी। गुरु जी अभी अभी मैं अब विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म यूट्यूब से शिखा आंटी का भी सत्संग सुन रही थी। तो बहुत मतलब सुनते सुनते ही ऐसे मुझे कड़ाह प्रसाद की खुशबू आती है। और मैं साथ ही फिर एकदम उठ के मैं साथ ही कड़ाह प्रसाद बनाने लग जाती हूँ। और अभी मैं गुरु जी के आगे रख के बैठी हूँ। गुरु जी माफ़ करना मुझे, मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो। कृपा करना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहना। मेरे दाता, मेरे पति अंकल की तबीयत पीछे बहुत ख़राब सी चल रही थी। उनके टांगों में फोड़े भी हो गए थे। तो उससे पहले मुझे 3 जनवरी को एक ड्रीम भी आया था, जिसमें कि मुझे मैं अपने पति को बहुत बहुत ही बीमार हालत में देख रही हूँ। और मैं स्वप्न में ही जय गुरु जी कर रही हूँ और रो रही हूँ और मंत्र जाप भी कर रही हूँ उनके लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी की जैसे आवाज़ आ रही है मेरे को कि कुड़िए, लोटे का जल जो ब्लेस की औरत ने रखा है उसका जल पिला। तो आज गुरु जी उसके भी 42 डेज हो गए हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी 3-4 दिन पहले ही उनकी टांगों में फोड़े हुए हैं, तो जो कि अब ठीक हो गए हैं गुरु जी। हो सकता है पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरु जी, जो बहुत बड़ा आना था आपने छोटे में काट दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब पे मेरे पर हाथ रखना, सब बच्चों पर कृपा बनाए रखना गुरु जी, सब पर कृपा करना मेरे गुरु जी। बेहद शुक्राना करना मेरे पापा। गुरपूरे राखिया दे हाथ, प्रकट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी, गुर गुर ध्याई, जे अरदास गुर पाही पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूरन होई सेवक सेव। जो पिंड जो बन राखे प्राण, कह नानक गुर कौ कुर्बान। वाहिगुरु। गुरु जी कृपा करना, मेहर करना, रहम करना मेरे दाता। अपने चरनी शरनी लगाए रखना, बच्चों को भी अपनी चरनी शरनी लगाना। कृपा करना गुरु जी, मेहर करना। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी, संगत जी एक बात और, काफ़ी दिन से ये मुझे आँखों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सत्संग सुनने में आ रहे हैं। तो मेरी भी आँखों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि मुझे बहुत ही धुंधला-धुंधला सा नज़र आ रहा था। तो एक मैंने सत्संग सुना, उसमें एक संगत जी ने बताया था, आंटी ने, कि रात को त्रिफला चूर्ण भिगोकर सुबह से अपनी आँखें धो। तो वो भी मैं गुरु जी के कहने पर, गुरु जी के आदेश से वो मैं कर रही हूँ। तो अब उससे मुझे बहुत फ़र्क है गुरु जी। आपका उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेहर करना गुरुपा। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सोमी आंटी जी। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी,
बेंत शुक्राना मेरे दाता, कृपा करना, रहम करना मेरे प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी, शुक्राना शुक्राना बेंत शुक्राना मेरे दाता। सब पे मेर पर हाथ बनाए रखना गुरु जी, कृपा करना, मेर करना गुरु जी। हम संगत से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी प्लीज माफ कर देना, कृपा करना गुरु जी। मन, कर्म, वचन, विचारों से कोई भी हमसे गलती होगी तो गुरु जी प्लीज माफ करना, मेर करना मेरे पर, कृपा माफ करना। संगत जी, गुरु जी कृपा करना। अभी अभी जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज आया कि कुड़िए बहुत बुरी तो बुरी खबर आने वाली है, शुक्राना कर गुरु जी। सब ठीक हो गुरु जी, बच्चे अपनी अपनी जगह पे खुश रहें, सबकी सबकी रक्षा करना गुरु जी, कृपा करना गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ताती वाह न लागे पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन वणत बनाई, राम नाम औखतिया इक्का लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कह नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, रोम रोम दा शुक्राना, श्वास श्वास दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना गुरु जी, कृपा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, आज 16 फरवरी है, दैट इज़ लकी नंबर 7 एंड राइट नाउ 3:50 PM टाइम है। और मैं विपिन अंकल सोम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जो मेरा शुक्राना सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं और सभी संगत जी के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दें। और ये सत्संग मेरा मैनिफेस्टेड है सभी संगत और उनकी फैमिली में हेल्थ हीलिंग्स के लिए, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग उसी से ही कनेक्टेड है। और गुरुपा कैसे हमें प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी जो है गुरुपा से प्यार करें और गुरुपा आपको भरपूर प्यार करेंगे। और आप उनको टाइम डिवोट करिए, उनके साथ बातें शेयर करिए अपनी, और वो आपकी ज़रूर हर चीज़ में हेल्प करेंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा की अनंत कृपाएं हैं, अनंत ब्लेसिंग्स हैं, उसका मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और कैसे गुरुपा अंग संग रहकर हमें सारी जो प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, सब स्ट्रगल्स में हेल्प करते हैं हमारी, हमको जो है टेंशन फ्री रखते हैं और हमारी हेल्थ इतनी परफेक्ट कर देते हैं। गुरुपा अपने अंग संग रहकर हमें लाइफ जीना सिखाते हैं, कैसे कर्म करना चाहिए वो सिखाते हैं, और हर चीज़ की जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में वो बताते हैं कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जो ये मीन्स हमारा पैसा कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कर्म कहाँ पर हमें करने चाहिए जिससे हमारे जो है आगे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। उन्होंने हमें हमारे पर्पस भी बताया कि हमें पर्पस क्या हमारा होना चाहिए। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें सत्संग के ज़रिए हमारी सोल को हील करते हैं, उनको शक्ति देते हैं। तो और अपने सत्संग के ज़रिए गुरुपा हमें हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, हमें नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की हिम्मत बख्शते हैं। और हमारा जैसे हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं, मोड पे हो जाते हैं, या हमारा नेगेटिविटी होती है, तो सत्संग सुनने से हमारे पॉजिटिवनेस आ जाती है। और जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो हमारा वो एक डायरेक्शन क्लैरिटी हो जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है ये सत्संग सुनने की, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग गुज़र रहे हैं, जो भी संगत है ब्लैक मैजिक से, तो मतलब हमें शुरू में पता ही नहीं होता ये हमारा लॉस या किसी का हेल्थ इशू किस वजह से हो रहा है, और हम लोग वो सफ़र करते रहते हैं। अब शुक्राना सत्संग से हमें पता चलता है किस वजह से हो रहा है और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब चीज़ें हमें क्लैरिटी मिलती है।
और गुरुपा के होने से हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये विश्वास भी गुरुपा दिलाते हैं। अपने साथ रह कर के हमें हमारा प्रेजेंट संवारते हैं, फ्यूचर संवारते हैं और हमारा पास्ट भी जो कार्मिक अकाउंट होता है उसे क्लियर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं आपकी शरण में हूँ। आपसे इतना आनंद प्यार मिल रहा है कि कभी जो हम इस प्यार के लिए तरसते थे, आज आपने जब से आप मिले हैं गुरुपा, और इतना प्यार मिला है कि कभी प्यार की मेरे को वो फील ही नहीं हुआ कि मेरे को प्यार नहीं मिल रहा या अकेलापन है, या फिर जो जहाँ से हमें एक मिलना चाहिए। हर रिलेशंस का एक अपना वो होता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, सिबलिंग्स का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ्स में आपस का अटैचमेंट हो या बच्चों का भी हो। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, एकदम सेटिस्फाइड, और आपने पूरा रखा कि कभी वो चीज़ फील ही नहीं हुई। कोई लोग हमसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कभी वो चीज़ फील नहीं हुई। और जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते भी थे, और उनका भी जो है आपने हम बताया कि कौन हमें हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, और उनसे आपने हमें दूर भी किया। जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो रिश्ते आपने हमसे दूर करे, उसका बहुत बहुत थैंक्स गुरुपा। क्योंकि ऐसे टाइम में लोग हमारा मिसयूज़ भी करते हैं, और वो खुद हमें छोड़ते हैं। तो बल्कि आपने हमारे लिए ऐसा किया कि उन लोगों को हमसे ही दूर कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा और किसी के साथ कुछ हमें रिएक्शंस और इंटरेक्शंस नहीं करने पड़े। उन सब का मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ गुरुपा। और जो हमारी चीज़ें खोई होती हैं आप हमें वो ढूंढवा के देते हैं, जो चोरी हुई होती है उसका भी आप हमें रिटर्न करवाते हैं। जो भी हमारे किसी भी तरीके का लॉस लोग हमें करना चाहते हैं, या उनकी कोई साजिश होती है, वो सब चीज़ों से आप हमें बचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और लाइक कहते हैं ना, जो लोग अभी स्टार्टिंग स्टेज पर है, जो लोग कंफ्यूज्ड है, मैं कहूँगी कि महाशिव साक्षात आपको जो आपका हाथ थाम रहे हैं। और 3 कॉल्स मिलती हैं, और बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिनको ये कॉल्स मिलती हैं। तो आप वो चांस मिस ना करें। और हम बीइंग अवर जो हम अपना एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ। आप बस ट्रस्ट रखिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को सरेंडर कर दीजिए, और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आपका संवर जाएगा। बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने गुरुपा का, उन्होंने मेरा हाथ थामा, और सबका बहुत अच्छा होगा। और यही मैं कहना चाहूँगी उनके लिए। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग होता क्या है कि 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, और मैं सत्संग जो है ना शुरू सुबह से ही मैं सुन नहीं पा रही होती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सत्संग मैं सुन नहीं पाती, और जब मैं सुनती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है। और था कि लोहड़ी की ब्लेसिंग्स है, तो थोड़ा सा लगा कि मे बी इट इज़ लाइक लोहड़ी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। और जब वो मैंने सत्संग सुना है, उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने वो सत्संग सुना, उसके अंदर मेरे को जो सुनने को मिला, मैं एकदम से हिल गई है। कहते हैं ना, मतलब कहते हैं कि जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, उस सत्संग में वही सब छुपा हुआ था। और बाहर कुछ आपके उसमें नहीं था कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन। व्हेन आई हर्ड दैट, उसमें था कि एक फूड पाइप किसी की ट्विस्ट हुई है, और एंड वो बहुत फूडी है, ही वॉज यंग, और उनकी सॉल्यूशन, मतलब इतना ज़्यादा वो सिचुएशन थी कि उनका जो सॉल्यूशन सिर्फ सर्जरी था, सिर्फ, राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक मेरे जो हस्बैंड हैं, उनका फूड पाइप ट्विस्ट हुआ। फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, वो ट्विस्ट हुआ है या क्या है वो मुझे नहीं पता। और ही इज़ ऑल्सो वेरी फूडी, और यंग एज है। तो और सॉल्यूशन जब सर्जरी ही बताई थी, तो मतलब ये सब सिचुएशन सुन करके ना मैं थोड़ा सा वो रह गई
कि ये सब सिचुएशन तो मेरी है। और नाउ डेज़ मैं बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से वो हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। मैं बहुत चिंतित थी अंदर से। एंड ये जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खुश भी हुई। मैंने बोला कि मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। और मतलब मैं अंदर से बस गुरु बाबा पे छोड़ा हुआ था, बट हमें सत्संग के ज़रिए ही वो हीलिंग्स मिलेंगी, और वो सत्संग उसी में ही था। तो बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज्ड हुई, खुश हुई। और मेरे को फिर विश्वास मेरा बढ़ता भी गया। मेरे को बोला लगा कि भाई अब गुरु पाई से ठीक करेंगे ज़रूर। क्योंकि संगत जी अभी जैसे 31 दिसंबर को अभी हमारे साथ क्या हुआ कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका एंडोस्कोपी हुआ इवनिंग में। मीन्स आई वाज नॉट देयर, आई वाज एट माय पेरेंट्स होम। और मेरे को पता नहीं था 31 दिसंबर को। मैं कभी भी प्लान नहीं करती, अदरवाइज 31st और 1 जनवरी दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहे होंगे। तो 31 दिसंबर को हस्बैंड का एंडोस्कोपी हुआ इवनिंग में। वो बहुत ज़्यादा टफ था, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एंड रिपोर्ट आई उसमें पॉजिटिव विद एन इन्फेक्शन कॉल्ड, कुछ इसमें नेम आया था। आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। आई हैव टेकन दैट स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आई विल शेयर वेरी नेक्स्ट डे। तो आया। एंड उसमें एक बहुत मेजर सी प्रॉब्लम आई, जो 15 डेज़ का कोर्स है ऑल दो, बट कुछ इन्फेक्शन उसमें आया। एंड इतना भी मेरे को पता था कि फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कि वो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। खाना बहुत अपस्ट्रेन हो गया है, बहुत लिमिटेड हो गया है। एंड ही इज़ ऑल्सो उनका वेट बहुत लूज़ हो रहा है। एंड मेरे को वेट की भी बहुत चिंता हो रही थी। वेट के भी सत्संग स्वरूपा ने सुना है, वो भी मैं अभी अभी सत्संग करते हुए नोटिस कर रही हूँ। एंड उसके बाद लेटर ऑन फिर जब ही स्लैप्ड अर्ली एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। और आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। 31 दिसंबर को जो ये टेस्ट वगैरह हुआ, तबीयत ठीक नहीं रही, क्योंकि जब टेस्ट के बाद थोड़ा सा अनईजी सा होता है दैट वेज। और फिर थोड़ा सा फाइटिंग वाइटिंग वाले मैसेजेस भी आने शेयर होने लगे वैसे करके। फिर 1 जनवरी को थर्सडे भी था और न्यू ईयर भी था। तो आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू गो टू बड़े मंदिर। वो तो खैर एक अनदर वो हो गया, बट जो मैं अगर हस्बैंड के लिए बात कर रही थी तो उसमें ऐसे हुआ था। और अभी जो मेरे को कल एक सत्संग सुनाई दिया, उसमें यही सेम प्रॉब्लम जो थी वो सत्संग में थी हीलिंग्स के लिए। तो मैं गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने वो सत्संग मेरे को सुनवाया, और आप जो है उसे मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम है आप उसे हील करेंगे। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में थे, बट आपकी कृपा से हर पल वो बहुत बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है विद टाइम। और एवरी टाइम दे यूज़ टू टेक अपडेशंस। जो घर में प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं वो हमेशा अपडेशन लेते हैं कि आपको ये तबीयत, आपने ये दवाई कब स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करी है, उसका क्या असर हो रहा है। क्योंकि दे आर वो दवाई जो होती हैं सारी मेडिसिन स्टॉक जो होता है वो ओपन में पड़ा होता है, बिकॉज़ वो मानते नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएटर के बारे में। और वो सारा मेडिसिन ओपन में रखते हैं। वो मेडिसिन उनकी लग भी नहीं रही होती है, जो भी है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है जो भी उसमें है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो फूड वो खा रहे हैं वो भी उन्हीं के हाथ का खाते हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स जो है ना ऊपर नीचे होकर के वैसे ग्राफ चल रहा है कि गुरुपा ठीक करते हैं और वो वैसे हो जाता है। तो अभी नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी गुड। मतलब वेरी गुड तो नहीं कहूँगी, बहुत बेटर है। जैसे वो पेन वाली सिचुएशंस थी वो सब था, एंड ही सेज़ कि बेटर हो रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु का आपका कि वो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। और एक अस्थमा का भी आया था। अब आई डोंट नो कि जैसे होता क्या है, हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं, हमें कुछ इतना आइडिया नहीं होता। तो अस्थमा के सत्संग भी आते हैं। अब आई डोंट नो वो किसके लिए है, बट गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी होता क्या है कि इतने टाइम से ना एक अरेस्ट के सत्संग आ रहे थे। तो वही होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये सत्संग हमारे लॉन्ग लॉन्ग जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती है कहाँ कहाँ तक के लिए होता है, फ्रेंड सर्कल में भी होता है। और पूरा गुरुपा ने सबको अपनी छत्र छाया में लिया हुआ होता है और हमें माध्यम बनाते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो इस तरीके से जो है एक अरेस्ट होने के भी सत्संग आ रहे थे, जो बेटे के लिए आ रहे थे। बट बेटे में जो मेरे को अभी समझ आया वो ये था कि इट कुड बी योर ब्रदर, योर brother daughter, brother son or your sister son।
ठीक है, या तुम्हारा बेटा, बट मेरा तो कोई बेटा है नहीं। तो फिर इट्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं था, बट गुरुपा ने जिसको भी प्रोटेक्शन दी उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही एक अरेस्ट का आ रहा था, एक साइबर फ्रॉड का भी आया कि आपके, मेरे को पता है कि जब से ये ब्लैक मैजिक वाली चीज़ हुई है तब से जो है हमारे अकाउंट्स भी हैक होते हैं और सब कुछ, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उनके तक पहुंचते हैं, मैं क्या इंटरेक्ट कर रही हूँ पूरी निगरानी में रहता है। मेरा जो लैपटॉप पे मैसेज आता है कि तुम्हें कोई ट्रैकर है जो ट्रैक कर रहा है, बट जिसको भी कहती हूँ कोई सीरियस उस चीज़ को नहीं लेता। मैं उस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को बहुत सावधान हो जाती हूँ। और जब भी मैं कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे पास वो एक ज़रूर एक मैसेज भी आता है। प्लस मैं सॉन्ग्स आजकल भजन वगैरह डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी। और अरेस्ट का मैंने आपको बताया। और इसके अलावा और मेरे को पता ही नहीं चलता था ये किसके लिए है। कई बार मैं सत्संग जो सुनती हूँ जिसमें उनकी मदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और वो जो है क्रिटिकल कंडीशन में भी है, बट मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट समहाउ अब वो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे सुनने से थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल रही है, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं मे बी वो हमारी मदर की ही कंडीशन को हील कर रहे होते हैं, हेल्थ हीलिंग्स होती हैं, या फिर वो किसी हमारे कनेक्टेड लोगों के लिए होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। किसी के फादर के लिए भी आपने सुनाया, सत्संग सुनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जिन जिन को भी जो ऐसी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हुई आपने उन सबको बाहर निकाला, तो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड ही होते हैं वो सत्संग्स। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा ने मेरे को बताया कि 12 जनवरी का एक सत्संग आया था जिसमें था कि तेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी का बताया, जिसमें मेरे को हार्ट का तो बहुत ज़्यादा क्लोजली फील होता है और गुरुपा ने उसको हील करा। फिर 15 जनवरी को, जैसे मेरे को बहुत टाइम से हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स तो समझ आ ही रही हैं कि मैसेज आ रहा है, 15 को सडनली मेरे को जो है एक ही सत्संग 2 बार सुनाई देता है जो कि हार्ट से कनेक्टेड था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वो बहुत मेजर उसमें था। ये कोई ओल्ड संगत जी का सत्संग था जिसमें उनको जो है हार्ट का स्ट्रोक आया और उनकी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हुई, सर्जरी हुई उनकी किडनी में स्टोन था, पैंक्रियाज अटैक हुआ। तो ये सब कनेक्टेड मेरे को जहाँ जहाँ लगता है। पैंक्रियाज अटैक मैंने एक सत्संग में सुना था जो बेटे के लिए था। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इस टाइम पर इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा नॉर्मल किडनी स्टोन्स हो जाना, किसी को ये सब चीज़ें आ रही हैं, वो आप हर एक किसी को अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं, सबको आप हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड विदाउट गुरुजी मेरे को ये पता चला कि पैंक्रियाज का जो अटैक होता है या हीलिंग्स होती हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं क्योर हो सकती। कोई भी इसे नहीं वो कर सकता, सब गुरुजी के कंट्रोल में होता है और गुरुजी ने वो ब्लेस करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग में आया नीज़ का सर्जरी, जो कि विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में ही पैर की जकड़न और उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आ रहा था। उसमें कहा कि उन्होंने नीज़ को इतना हेल्दी हील कर दिया कि उनको अब नीज़ की सर्जरी होनी थी, या वो होता है ना हमारा नी रिप्लेसमेंट का। गुरुपा ने मैसेज, मतलब उस सत्संग में ये मेरे को सुनाई दिया कि अब आप एकदम बच्चे जैसे आपके नीज़ हो गए, आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर पेन का आया, हैंड पेन मेरे को हो रहा था एक सत्संग में, वो भी आया। मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई संगत जी कि मेरे हैंड में पेन हो रहा है और एल्बो से ऊपर मेरे को पेन हो रहा है और वो एकदम से सत्संग आ जाता है। मैं बोलती हूँ कैसे एकदम इतना फास्ट और टाइमिंग इतने परफेक्ट होते हैं कि हमें टाइमली सब कुछ पता चल जाता है, आ जाते हैं और हीलिंग्स मिल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए। आप इतनी सत्संग के ज़रिए हमें हेल्थ हीलिंग्स, मतलब सत्संग जो अपना काम करता है ना, जो हमें सुन कर के लेना होता है ब्लेसिंग्स, और एक ब्लेसिंग्स होती हैं जो गुरुपा खुद ही अपने आप उसमें से मतलब एक रेशियो होती है, लाइक सत्संग सुन के हमें इतना कष्ट हमारा दूर होगा, उसके बाद जो गुरुपा करेंगे वो ब्लेसिंग्स वो अलग पोर्शन है। तो इस टाइप से होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप सबको इतनी प्रोटेक्शन शील्ड में रख कर, मैं बार बार कहूँगी, आप हर एक फ्रॉड से भी बचाते हैं। कहा तक कि वो कई लोग हैं जो कि तुम्हारे आईडीज़ को यूज़ करके कुछ लोन ले रहे हैं कुछ अमाउंट का,
तो गुरुपा आप ही बचाएंगे जो हमारे नाम का कुछ गलत लोन ले रहा है या किसी साजिश हमारे खिलाफ़ कर रहा है, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और वहाँ हम जाना भी नहीं चाहते। आप ही सब संभालो, आप ही सब देखो गुरुपा कि फ्रॉड्स, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें दुनिया में भरी हुई हैं और आप ही इन सब से बचाओ हमें, जैसे आप बचाते आ रहे हो। और कोई हमारे साइन को मिसयूज़, कोई साजिश जो हमारे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ भी साजिश जो भी आप बता रहे थे, कोई हमारे अकाउंट का कुछ अमाउंट इन सब क्रियाओं में यूज़ कर रहा है, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहा है, हमारा अकाउंट अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो आप इन सब से बचाओ गुरुपा, आप पर सब छोड़ा हुआ है। फिर एक सत्संग में मैंने संगत जी शेयर करा कि मेरा बर्थडे इस मंथ में जनवरी में है, तो गुरुपा मेरे को इस बार आपकी विशेस चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि स्वरूप मेरा जो है घर पे बहुत टाइम से, गुरुपा मेरे घर पर, गुरुपा का ही घर है और गुरुपा है, और 1-2 साल ही हुए हैं, कि 2 साल हुए होंगे जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, कि मैंने जब स्वरूप्स का इतना अनादर होने लगा और इतना गलत गलत बोला गया घर पर, तो मैंने मन में आया कि मैं स्वरूप घर पे नहीं रखूँगी। तो तब मैंने फिर किसी संगत को डिस्ट्रीब्यूट किया था जिनको नीड थी। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं उसके लिए हमेशा मेरे दिन में वो चीज़ रहती है। प्लीज़ मेरे को उस गिल्ट फीलिंग से थोड़ा सा वो कर दो, फ्री कर दो, कि मैंने जो ये स्वरूप्स किसी को दिए हैं वो इसलिए दिए कि घर में बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा था, बहुत गलत गलत बोला जाता था, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, अनादर होना। प्लस अभी मेरे घर पर जो जो खंडित ही मूर्तियाँ और पुरानी पुरानी फ़ोटोज़ ही पड़ी हैं, कोई देखेगा वो ये नहीं कह सकता कि जिनके पास इतना फ़ंड है घर में उनका मंदिर ऐसा हो सकता है, या जो ऐसा कैटेगरी का है उसके घर में मंदिर ऐसा हो सकता है। बट बहुत शर्म की बात है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उनका मंदिर, वो मंदिर वाला प्लेस इतना गंदा है हमारे घर में, और उसमें मेरा कोई भी राइट नहीं है कि मैं उसको कुछ इम्प्रूव कर सकूं या कुछ कर सकूं। और मैं अपने आप को इतना समझती हूँ कि मैं, अगर मेरे को थोड़ा राइट दिया जाता तो मैं गुरुपा की कृपा से इतना कुछ कर पाती। बट फ़ोटोज़ रूप सब इतने पुराने और इतनी बुरी कंडीशंस में रखे हुए हैं, मंदिर वैसे प्लेस किया हुआ, मतलब मैं कुछ नहीं उसके बारे में बोलना चाहती, बट बहुत शर्म आती है इन अदर वर्ड्स। और ऐसे ही जो गुरु नानक देव जी का जो एक फ़ोटो है जो शुरू से ही यहाँ पे मैंने देखा है 6-7 सालों में, तो उसी पे भी पीछे पीछे फ्रेम्स के पीछे ही क्रिया करी होती है ताकि उसमें मेरे को ब्लेसिंग्स ना मिलें, और कुछ नेगेटिविटी उसमें भी डाली जाती है। तो वो क्योंकि इनसिक्योर होते हैं, और वही फीलिंग इनसिक्योरिटी की या मेरे को वो नेगेटिविटी दे रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हटाया था। तो अभी भी वो जो फ़ोटो, जो गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है, वो पीछे उसके फ्रेम के पीछे जो है वो सब मैं जो मतलब क्रिया करी हुई है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ समथिंग समथिंग इज़ देयर। तो कहने का क्या है कि हर चीज़ों में ऐसे है। फिर मैं सोचती हूँ कि और मैं कोई स्वरूप कुछ भी यहाँ पे रखूँ, उसमें भी फिर वो सब चीज़ें होती, इसलिए फिर थोड़ा सा बहुत बुरा लगा था मुझे उस टाइम पे। और फिर कहते थे कि मेरे स्वरूप के सामने से ये सब चीज़ें हटा दे, और जानबूझ के वो लोग उसी स्वरूप के सामने वो चीज़ें, गंदी चीज़ें रखा करते हैं। या कहो कि जो जोत होती है उसके वो हार्पिक से धो करके वो वहाँ पे मंदिर में जोत जला रहे होते हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ऐसी चीज़ों के साथ कोई जोत होता है। मैंने उनको बोला भी था कि ये सब क्यों, बट उनको ये है कि इनको पॉजिटिव ना हो, इनके साथ नेगेटिव हो, कुछ इनकी ग्रोथ ना हो उस करके। तो सिर्फ ये रीज़न था जो मैंने स्वरूप से हटाए थे। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे। मैं हटाने वाली तो कोई भी नहीं होती, बट मेरे को ये नहीं चाहिए कि उससे कोई नेगेटिविटी आए, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो या कोई आपका अपमान करे। तो बस मेरा एक कंसर्न ये था। और दूसरा ये था कि आज 16 जनवरी, आज मेरे को एक सत्संग सुनने को आता है मॉर्निंग में। जो सबसे पहला सत्संग मैंने सुना उसमें ये था कि 2 लेयर जो है ब्लैंकेट यूज़ करा, और उसमें बहुत उनको ठंड लग रही थी आंटी को। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और इतना ब्लेस फील करा कि गुरुपा को मेरे ऊपर दया आई, और एक प्यार गुरुपा का मेरे को इसमें झलका। रीज़न ये था कि मैं अपने जो घर इन लॉज़ हाउस में, और इन लॉज़ ही रखते हैं अपने पास ब्लैंक रजाई वगैरह,
और मैं उनसे अब नहीं लेती हूँ बहुत टाइम से, जब से हमारे रिलेशन्स में ये सब हुआ है। और मेरे को उनकी अच्छे भी नहीं लगते, जो जिस माइंडसेट के साथ वो उनको मेंटेन कर रहे हैं या जो भी है, मेरे को वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड उसे यूज़ करते हैं और ही फील्स लाइक कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड एट द सेम टाइम मैं अपने जो मेरे पेरेंट्स की साइड से मेरे पास आए हुए थे ब्लैंकेट्स, मैं उन ब्लैंकेट्स को यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा मॉडरेट थोड़ा सा थिंकिंग है। मैं उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करके यूज़ करना चाहती हूँ, जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब जो रजाई वगैरह को। तो मैं अपने ब्लैंकेट्स यूज़ करती हूँ। तो कहने का ये था कि मेरे को भी 2 लेयर्स ब्लैंकेट यूज़ करने पड़ रहे थे। मेरे को बहुत ठंड लगती और कई बार मेरे हाथ पैर इतने सॉरी ठंडे हो जाते हैं, ठंड शिवर कर रही होती हूँ। तो गुरुपा का वो मैसेज आया, मेरे को ऐसा लगा कि गुरुपा ने सत्संग के ज़रिए मेरे को वो गर्माहट दी है कि मेरे को ऐसे कभी अब 2 ब्लैंकेट्स में मेरे को कभी ठंड नहीं लगा करेगी। मेरे को ऐसा विश्वास, ऐसी फीलिंग है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग गुरुपा ने मेरे को उसी में ही सुनवाया कि चॉकलेट का, कल मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मैंने कब से चॉकलेट नहीं खाई है, और आज वो संकट आंटी भी यही कहती है कि मैंने बहुत टाइम से चॉकलेट नहीं खाई, एकदम से चॉकलेट मेरे को मेरे बच्चों ने दी। तो बहुत कोइंसिडेंट और बहुत अच्छा लगा कि वही सेम सत्संग गुरुपा ने मेरे को एज अ ब्लेसिंग दिए। ऐसे ही सत्संग गुरुपा ने एक सत्संग हेमा आंटी का था आई थिंक, उसमें बोला था कि उनके डेंटल केयर का था। तो गुरुपा हमें वो सारी ब्लेसिंग्स पहले ही दे देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर हमें शॉपिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें पहले ही जो है उसके सत्संग सुनाने शुरू कर देते हैं। एक बार शूज़ का सत्संग आया कि उन्होंने शूज़ शॉपिंग करा, मैं ही सोचती थी कि क्यों आ रहे हैं, बट अब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वो इस वजह से आते हैं जो तुम्हारी ब्लॉकेज होती है, जो तुम्हें कोई मना कर देता है शॉपिंग के लिए कि हमें शॉपिंग नहीं करनी है या पोस्टपोन हो जाती है, वो फिर तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है, वो ब्लेस कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी क्लोथिंग्स का भी आता रहा, कुछ कोई पर्स लेकर आया, तो गुरुपा हमें वो एक ब्लेसिंग्स दे देते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है कि आपको भी वो मिल सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने जो है एक मेरे को सत्संग में एक भंडारे का बताया था कि भंडारे में कोई गलती हुई है, तो गुरुपा मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन दो। उसमें भी एक आंटी ये बता रही थी, अपना आइडिया दे रही थी कि वो जो बनाते हैं वो ड्रिंक करके बना रहे हैं या कुछ उसमें हमने उसको वो करा है, फेंका है, ऐसा कुछ हुआ है, क्या गलती हुई है मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट मेरे को उसकी माफ़ी दे दो गुरुपा कि वो भंडारे में जो भी गलती हुई हो। और गुरुपा जब से मैं अपना कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हूँ तब से मेरे पास वो आँखों को बचाने के सत्संग भी शुरू हो गए। मतलब वो मुझे पता है कि ये लोग चाहते हैं कि मेरी आँखें ऐसी रहें और मैं मतलब अच्छा ना दिखूं, और मैं नहीं चाहती कि मैं दुनिया की नज़र में बहुत परेशान ऐसी पर्सनैलिटी लेके घूमूं कि मेरी आँखें, क्योंकि होता क्या है जब हम आप ये कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं ना, या आँखें या काजल वगैरह यूज़ करते हैं सिंस लॉन्ग टाइम, तो उसके बाद कभी हम नहीं यूज़ करते ना तो वो आँखें सूजी सूजी लगती हैं। एंड इट फील्स लाइक लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ से इतनी दुखी इंसान आ गई है, क्यों इतना टेंशन लेते हो, ऐसे ऐसे करके। तो अब वो ये चाहते हैं कि मैं तैयार होके ना रहूँ, मेरी आईज़ पे इस टाइप से वो, क्योंकि रोज़ उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ों में देखा है। एंड एक भी दिन मैंने कभी स्किप नहीं करा कि मैं विदाउट काजल रही हूँ। और अब वो जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि मेरा जो है मैं अपना आई मेकअप ना कर पाऊँ, आई मेकअप विच इज़ अ वेरी बेसिक वन, मैं वो भी ना कर पाऊँ। मेरे घर से सारा जो भी आई शेडोज़ का किट होता था, सब कुछ होता था, सब मैंने निकाल दिया और डिस्कार्ड कर दिया। एंड नाउ मेरे को एक बेसिक में इतना रिस्क के बाद एक वो बेसिक आई मेकअप्स की चीज़ें लेकर आई जिसमें लाइनर, काजल, यही सब था। एंड वो जो है तब से मेरे पास एक सत्संग आ रहे हैं तो अपनी आंखें बचा ले, आंखों की रोशनी बचा ले। तो गुरुपा कुछ ऐसा कृपा करो कि ये आइज़ वाले जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं उस पर कुछ ये करे ना, क्योंकि मैंने उसे छुपा के रखा था। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि एक दो दिन वो प्रोटेक्टेड रहा, तीसरे दिन मेरे पास मैसेज आना शुरू हो जाता है कि तू अपनी आंखें बचा ले। मतलब 2 दिन तक वो अपना दिमाग लगाते रहे कि कहाँ पड़ा है कहाँ पड़ा है, और तीसरे दिन उनको वो वहाँ तक वो पहुँच भी गए। तो ये मेरे साथ मेरे को बहुत एक वो लगा। और इसके बाद
उसी के साथ ही जो मैंने इकट्ठा 2-3 चीज़ें रखी हुई थी, एक लिपस्टिक रखी हुई थी जिसमें मैंने ये नोटिस करा वो लिपस्टिक जब हम लिक्विड कोई चीज़ में कर रहे हैं तो वो मोटे मोटे पार्टिकल्स में वो घूम रही है, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया विच वॉज अ गुड ब्रांड। बट मैं एट द सेम टाइम अब आपने मेरे को इतनी हिम्मत दे दी सब कुछ डिस्कार्ड करने की, तो बहुत बहुत शुक्राना भी है उसका। बट लॉस एट द सेम टाइम, जो सही चीज़ें पड़ी होती हैं हम उससे डिस्कार्ड करने पर आ जाते हैं। और ऐसे ही जो आईब्रो पेंसिल है गुरुपा, आईब्रो पेंसिल में भी जब मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईब्रोज़ वाइट होनी शुरू हो गई है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक टेंशन वाली मैटर है कि मेरी आईब्रोज़ वाइट हो रही हैं बहुत एक्स्ट्रा। इवन मेरे फेस पे भी, चिन्स वगैरह पे भी वाइट हेयर्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इसका कोई सॉल्यूशन आपकी ब्लेसिंग्स के अलावा कोई भी नहीं है। आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुपा तो मेरी आईब्रोज ब्लैक होंगी और नॉर्मल हो जाए, बस मेरे को इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसी से ही सारी एज रिफ़्लेक्ट होती है, टेंशन रिफ़्लेक्ट होती है, जो मैं नहीं चाहती कि लोगों को मैं दिखाऊं कि मेरे को बहुत सारी टेंशन्स हैं। मैं चाहती हूँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो लोग घूम रहे होते हैं रोड पर, मैं भी वैसे ही जाऊँ, मेरा ऐसे ना रहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आपकी ही कृपा है, आपकी संगत हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहती गुरुपा मैं दुखी हूँ, तो प्लीज़ आप इस पर कृपा करें। और आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए। अभी मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत मतलब अभी थोड़े से ही मैंने शेयर करे हैं, जिसमें भरपूर कृपा है गुरुपा की। गुरुपा का नाम लेना, गुरुपा की प्रेजेंस किसी भी चीज़ में होना, वो बहुत बड़ा सत्संग है और बहुत बड़ी कृपा है गुरुपा की। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे ये छोटे सत्संग हैं, और कभी कहना भी नहीं चाहिए कि बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, जहाँ पे गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, अपनी कृपा कर दी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत ही शक्ति से भरा हुआ सत्संग होता है गुरुपा। लव यू सो मच। इसी तरह अपनी कृपा भरा हाथ मेरे पे बनाए रखना और प्रोटेक्शंस मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली पे बनाए रखना गुरुपा। और क्योंकि अभी संध्या वेला 4:20 PM हो गए हैं, तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ पूरी यूनिवर्स से, पूरी दिव्य शक्तियों से, गुरुपा आपसे, संकट मोचन भगवान जी, नीम करोली बाबा, कुल देवी देवता, अपने पितरों से, सभी से ही माफ़ी मांगती हूँ कि कोई मायके परिवार में किसी से गलती हुई है, मेरे से या मेरे मायके परिवार में, इवन सेम ससुराल में भी किसी से या मेरे से कोई गलती हुई है, कोई नाराज़ है, तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा। और भोले बाबा मेरे महाशिव, आप जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, आप उनको मुक्ति दीजिए, उनको अपने कमल चरणों में रखिए, और जो भी उनके लिए बेस्ट हो वो आप उनके लिए करिए गुरुपा। और कुल देवी देवता, पुत्रों, सभी देवी देवताओं से, माता रानी से, सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, सबको मैं बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ एट द सेम टाइम। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आपका मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय ओम गुरु जी, नमः शुक्राना शिवाय, शिव गुरु। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रश्मि बेंगलोर से उनका शुक्राना सत्संग करते हुए विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने शुक्राना के सत्संग के फूल अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा की कितनी ही शुक्राना करे, क्या हर सांस में ही शुक्राना है उनका। संगत जी, बहुत टाइम से मैं अपने आप को अपने घर में बहुत अकेला महसूस करती थी, बहुत ही अकेला। कभी कभी आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हो, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे एक्चुअली में सब फिज़िकली अवेलेबल होते हैं, कोई इमोशनली आपसे अटैच होना ही नहीं चाहता है। बच्चे तो फिर भी हो जाएं, हस्बैंड को तो बहुत वक्त लगेगा ये बात समझने में कि उनको भी इमोशनल अटैच होना चाहिए और फैमिली को वैल्यू देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा बहुत सारे घरों में, अगर किसी भी घर में ऐसा नहीं है तो ये गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उसका शुक्राना करिए, बहुत बहुत शुक्राना करिए। आपकी फैमिली आपके मॉरल वैल्यूज़ को समझे, आपको रिस्पेक्ट दे,
ये बहुत बड़ी बात होती है। शुक्राना है गुरुपा का। इतने टाइम से मैं बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में चल रही थी, तो कल गुरुपा ने मुझे लोहड़ी ब्लेस की, मकर संक्रांत का तिल और गुड़ ब्लेस किया। जब मुझे एक न्यू स्टूडेंट का ब्लेसिंग मिला, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स लेती हूँ। ट्यूशन लेना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। एक्चुअली जब आप किसी से कनेक्ट करते हो, बच्चों से कनेक्ट करते हो, तो पूरा साल हंसते गाते तो नहीं बीतता, कभी कभी फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन मोर और लेस आप अपने आप को हैप्पी महसूस करते हो, तो तब वही ब्लेसिंग है। अगर आप अपने आप को उतार चढ़ाव के बाद भी ब्लेस्ड महसूस कर पा रहे हो, उस चीज़ के लिए आप जो चाहते थे वो हो पा रहा है, उस सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे जो बच्चे ब्लेस किए दोबारा, इसका मतलब है कि आप मुझे बिज़ी करना चाहते हो, ताकि बाकी लोगों के नज़र में जो भी चल रहा हो वो चलता रहे, तो अपने काम में मस्त रहे और हंसती रहे, गुनगुनाती रहे, भजन संध्या में पार्टिसिपेट करती रहे। और ग्रुप कॉल में जब आप मुझसे कोई सेवा लेते हैं, जैसे कि कभी अमृतवाणी, कभी मंत्र जाप का, तो वो गुरुपा मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे प्यार से बुला करके एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दे रहे हैं, और मैं उस गिफ्ट को लेके बहुत खुश हूँ। वो गिफ्ट आपका आशीर्वाद है, वो गिफ्ट आपका अटेंशन है, जो हर बच्चे को अपने पिता माँ बाप के साथ चाहिए होता है। कभी आपने देखा होगा ना, आपके घर में छोटे बच्चे, जब आप उनको प्यार से बुलाओ तो बड़े ही इतराते हुए आएंगे, और इतराते हुए आकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। मन से तो हाँ, इतरा रहे होते, खुश हो रहे होते, ब्लश कर रहे होते कि माँ ने बुलाया है, मैं किसी लायक हूँ। तो बस ऐसी ही इच्छा आती है गुरुपा, ऐसा ही लगता है कि हम भी किसी लायक हैं, हमने भी कुछ आज पढ़ा, हमारा भी कुछ कर्म है इस संसार में जो हम कर पा रहे हैं। हम योगी जनों के बीच में बैठकर कुछ लायक हैं। मेरे सारे कष्ट जो आप काट रहे हैं मुझसे ये सेवा करवा के, इसका शुक्राना है गुरुपा। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे हस्बैंड अंकल को बुद्धि ब्लेस कीजिए, और परिवार से उन्हें भी कट ऑफ करिए, क्योंकि ये झोल झाला है, ये बहुत बड़ा जंजाल है। लोग उन्हें फांसते हैं, उन्हें समझ नहीं आता और वो फंस जाते हैं। हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा होता है आज के संसार में, और जो भोले भाले होते हैं ना, जो सोचते हैं कि अरे मेरा परिवार तो क्या है, ये तो ऐसे ही है, और संसार में सोचते हैं कि अपने माँ के परिवार में, मैं किसी दरार की बात नहीं कर रही, मैं नहीं चाहती, लेकिन कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि कौन कैसे गेम खेल रहा है ये समझ आए, ऐसा हो गुरुपा। क्योंकि एक बीवी बताएगी ना, एक पत्नी बताती है, तो वो बहुत 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 बुरी पत्नी है, वो तो दरार पैदा कर रही है। लेकिन जब खुद समझ आता है, खुद दिखता है, और जब समझ आने लगता है कि अरे मैं ही क्यों ऐसा ट्रैप हो रहा हूँ, लोग मुझे बांध के फ्री होकर हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, क्यों भाई, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मेरी है। जब माँ बाप पालते हैं 4-5 बच्चों को, तो क्या वो फ़र्क करते हैं? और बच्चे आपस में ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये बड़ा है तो ये ज़्यादा संभालेगा, ये छोटा है तो ये बहुत लाडला है। तो बीच वालों को वो नहीं मिला था क्या जो माँ बाप ने तब दिया था? जब माँ बाप 4 रोटी पकाते हैं तो वो बराबर सोचते हैं, हर किसी को बराबर देते हैं,
और बच्चे ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये तो बड़ा है, तो ये तो देवता है उनका, सारे डिसीजंस इनसे लेकर करेंगे। ये छोटा है तो वो तो सबसे ज़्यादा लाडला है, हम तो बीच वाले हैं, हम तो वैसे ही हैं। गुरुपा ऐसे सोच से संगत जी घर ही खराब होता है और कुछ नहीं होता है। तो बड़े वाले को भी समझना पड़ता है कि उसे प्यार से बोल बोल के फंसाया जा रहा है, उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा लोगों को ज़बरदस्ती कि तू भी जिम्मेदार है भाई, तुझे भी करना है, मैं अकेला नहीं हूँ। और छोटे वाले को भी समझना होगा, हर किसी को समझना होगा। तो ये बराबर की श्रद्धा की बात है और श्रद्धा सबके साथ बराबर में आनी चाहिए। शुक्राना है गुरुपा, यही अरदास है मेरी, क्योंकि अगर धर्म पत्नी कुछ सिखाने की कोशिश करे तो वो तो बहुत ही बुरी हो जाती है। तो मुझे नहीं बनना बुरा, अब बहुत बन गई। अब मैं अलग हूँ, ना मुझे अच्छा बनना है ना मुझे बुरा बनना है, वो जाने, उनके काम जाने। सब लूट रहे हैं, तुम लूटना चाहते हो, अपने आप को लुटवाना चाहते हो तो लुटवाओ, ठीक है। और अगर समझ आ गई है कि ये तो एक ट्रैप है तो थोड़ा रिजर्व हो जाओ, अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों पे ध्यान दो। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, न्यू बच्चे गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं ताकि मैं बिज़ी रहूं, खुश रहूं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि हर बार जब मैं दुखी होती हूँ तो वही मुझे उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, क्योंकि उनका मैसेज जब आता है, बेटा तूने जो भी खोया था वो तुझे डबल होकर वापस मिलेगा, जा मज़े कर और शुक्राना कर, तब एक बेटी की आवाज़ और बुलंद हो जाती है। शुक्राना सत्संग करने को गुरुपा हमेशा कहते हैं, तो मैं उनके सामने माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। दिल में तो मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ, सुबह शाम शुक्राना करती हूँ। इसलिए शुक्राना सत्संग आपके लिए है प्रभु जी। बस अब मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों को। मेरे बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा गुरुपा, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। मेरी बड़ी बेटी बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त है, मुझे दिखता है, थोड़ा बच्ची भी है, खेलना भी चाहती है, मचलना भी चाहती है, उसको इतनी बुद्धि दीजिएगा कि वो सब बैलेंस कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर बहुत हमारी नज़र टिकी हुई है, हम प्रेशर नहीं देते किसी को, लेकिन इच्छा ज़रूर रखते हैं कि संसार में फेल ना हो, बस इज्जत से पास हो जाए हर जगह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आज जनवरी महीने का 15 तारीख हो गया गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्याटी के प्लेटफॉर्म पर 0434 है बाबा अब, और 69% चार्ज। इसमें भी बाबा 7 का ब्लेसिंग्स है। और आज 15 तारीख है बाबा 2026। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेला का शुक्राना समाप्त सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारे साथ संगत जी को भेजा है गुरु जी। अब कल मैंने सारे आपके जितना भी सत्संग आपने बेटे से रिलेटेड किया था, दिया था, मतलब उसको उस सबको मैंने सुना है गुरु जी। और गुरु जी कल एलर्जी से ऐसे बहुत बोझिल हुई पड़ी थी, ऐसे तो लग रहा था कि कोई मेरे अंदर स्विच ऑफ हो रहा है और वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। तभी बाबा मैं मतलब ये मैं फिर आ गया। बाबा फिर भी सारा पाठ आपने करवाया, सत्संग भी सुनवाया और साथ में दवा भी लिया है बाबा, तो जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हो पाई। बच्चे का डांस क्लास उसके माँ के साथ भेजा था कल, हस्बैंड लेके छोड़ के आए थे, से वो लेके आई थी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपने मुझे बहुत हजारों करोड़ों संकेत दे दिए कि बेटा मेरे शरण में है। मैं अपने छोटू के लिए, मतलब अपने छोटे बेटे के लिए थोड़ी चिंतित हूँ बाबा। पढ़ाई के नाम से बहुत दूर भाग जा रहा है। मैं रोज उसका नजर उतारा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। एक तो बाबा मनोस्थिति जैसे कि अपने कंट्रोल में नहीं है, कुछ करते रही हूँ। बाबा आप मुझे माफ करिएगा यदि मुझे कुछ भी मुझसे थोड़ी भी भूल चूक हो जाए गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप मुझसे सारा सेवा सिमरन पाठ, जिस दिन बाबा शिव पुराण पढ़ नहीं पा रही हूँ उस दिन मैं कोशिश में लगती हूँ कि हर जहाँ छोड़ा है वहाँ सुन लो। मेरे पास और उपाय नहीं रहता बाबा, क्योंकि बॉडी उस समय ऐसा ही अस्वस्थ हो जाता है। मैं उठ के जाके वहाँ टेबल पे बैठ के शिव पुराण का पाठ करूँ। इस हाल में भी आप मुझे चलाए जा रहे हैं। कल मुझे ऐसा तो प्रतीत हो रहा था गुरु जी कि बेटा भी बहुत थोड़ा परेशान हो पड़ा था। एक तो अपने पिता का सारा पेपर्स वगैरह उसके पास आ गए हैं, और बाबा दूसरा दूसरा बाबा कुछ कुछ अपने पिता का भी सब सामान जो भी फाइल पहुंचे हैं वो सबको भी रीड कर रहा है, देख रहा है, कर रहा है। बाबा मेरे उसको शक्ति दीजिए और अपना छत्र छाया में रखिए, और बाबा उसके काम में आप बरकत देंगे तो ही तो वो हमें संभाल पाएगा गुरु जी। प्लीज मेरे बाबा उसको अपने सब में से चरनी शरनी लगाइए और जितना हो सके बाबा अपने दरबार में बुलाइए गुरु जी। मेरा बाबा मैं तो सब कुछ छोड़ चुकी, पर मेरे छोटे बेटे के लिए मुझे कुछ तो पैसा चाहिए होता है। बाबा कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ, मुझे उसको पूरा करना पड़ता है बाबा। और इसी चक्कर में बेचारा थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया है, शायद इसीलिए चिढ़ रहा है गुरु जी। और जो कि मैं कभी मारती नहीं थी, भले ही पीठ में उसके बदमाशी से लगा दे रही हूँ, तो मुझे उल्टा बोल रहा है अब तुम भी मेरे को मारने लगी, मैं चला जाऊंगा कहीं। बाबा मेरे दोनों बच्चे मेरे जान प्राण है, प्लीज मेरे बाबा। उसको अभी ये अंदाज नहीं है कि
उसको आंटी ने बड़े स्कूल में डाला है और अभी तो स्पोर्ट्स चल रहा है बाबा, तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो जरूर करना होगा बाबा। जैसे कि आपको मालूम है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उसके हाथ पूरे फिस्ट पूरे फोल्ड नहीं होते। बाबा आपका कृपा रहेगा तो वो फेस भी फोल्ड होने लग जाएगा और उसका लिखावट भी बहुत अच्छा हो जाएगा बाबा। बाबा मैं जब भी अरदास करती हूँ अपने पति और अपने बच्चों के लिए, मेरे को बाबा छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं, बस अपने छत्र छाया में रखिए, मैं आपका सेवा करते करते ही चली जाऊंगी। बस मेरे बाबा, ये जो इतना बड़ा संकट मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, इस चीज से हमें उबारिए गुरु जी, क्योंकि एक आप ही हैं जो कि इस संकट के समय में हमें चुटकी बजा के भी उबार सकते हैं। पर अपना अपना कर्मा कटिंग सबको करना पड़ता है गुरु जी। प्लीज मेरे बाबा प्लीज। बड़ा बेटा थोड़ा ज्यादा ही परेशान है गुरु जी। थोड़ा ज्योत में बटरफ्लाई दिख उड़ रही है बाबा। मेरे कल भी संक्रांति था, आज भी थोड़ा है लगा हुआ। अब आज हमारे घर खिचड़ी बनेगा बाबा। बस बाबा हम बहुत लिमिट में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ताकि बेटे के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा ना पड़े। वो इनका उधारी चुकाए, ना अपना संसार चलाए, ना अपना काम करे, ना कि हमारी सारा जो भी दिनचर्या का खर्च समेटे। प्लीज मेरे बाबा उसका साथ दीजिए, ताकि वो जो भी करे हमारे लिए उसको इस चीज का पछतावा ना हो कि हाँ मुझे अपना तोड़ के तब किसी का करना पड़ा है। बाबा मेरे, मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ, और मैं कुछ बोलने लायक नहीं। चाहे ये चीज बाबा जो ये घटित हुआ है, 1 महीने का हो या 1 दिन का हो या ये 10 दिन का, बाबा ये अंतर्मन में नासूर के जैसा बन गया है गुरु जी। और ये तो आपके द्वारा मेरे साथ ही जाएगा। बस मैं यही सोचती हूँ गुरु जी कि मैं कहाँ चूक कर गई। बाबा मेरे, कल मैंने क्षमा मांग लिया। बेटे ने सत्संग वाले दिन रात को 12 बजे तक के ऑनलाइन नॉनवेज मंगा के खाया था, इसलिए आप रुष्ट हुए। बाबा उसे माफ करिए, मुझे भी करिए। मैंने उसे आगाह किया था बाबा, पर भूख के आगे कुछ नहीं चलता। वैसे ही वो खाता ही नहीं है कुछ भी सिवाय प्रोटीन बेस के। उसने कहा माँ मैं भी क्षमा मांगूंगी बाबा से, तुमको बहुत तकलीफ मिल रहा है। बाबा कैसा ऐसा जब सा एलर्जी था, मेरी आंखों से जो जल है अनवरत गिरे जा रहे और खुजाए जा रही थी मैं। उसके बाद ये जब सब टाइट किया तो सिर्फ आंखों का सारा एरिया एकदम सिकुड़ गया था गुरु जी। प्लीज मेरे बाबा इस माँ का अरदास को मान रखिए, और इस बार नहीं करूंगी बाबा कि हाँ आप अपना टाइम दीजिए बाबा, जितना जल्द से जल्द हो सके उसको सही रास्ता दिखा के सही सोची दे के इस संकट से निकलवाइए हमें बाबा। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अभी और कुछ नहीं बोल सकती गुरु जी, क्योंकि मुझे पाठ चालू करना है, फिर आंटी लोग ग्रुप में कॉल करेंगी। बस
बस हम माफ़ी मांग सकते हैं गुरु जी, और हम कोई काबिल नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मिले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी।